Hi everyone, welcome to the official YouTube channel of Nyay Academy, where we promise you to provide quality content for UPSC, Law and Commerce. This video is part 2 on GAP. Part 1 में हमने GAP के अंदर covered accounting concepts and conventions पढ़े थे. Now in part 2 we will learn accounting standards. इस वीडियो में हम कवर करेंगे कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर द एग्जाम्स लाइक सेबी और यूजीसी नेट. However, you need to learn all the accounting standards in brief which are covered under the GAP. So let's start with it. We learned in the previous video as well the meaning of GAP is generally accepted accounting principles which are the standard framework which are the guiding principles for the financial accounting. गैप बेसिकली कोड प्रोवाइड करते हैं कंपनीज को सो दैट इट इज हेल्पफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. गैप हेल्प करते हैं कंपनीज को प्रेजेंट करने में अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दे प्रोवाइड द कोड कि हाउ टू रिकॉर्ड देयर इनकम, एक्सपेंडिचर, एसेट्स एंड लायबिलिटीज. गैप के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस प्रोवाइड किए गए हैं सो दैट the companies can have more detailed and comprehensive financial statements. GAP provided certain principles, standards, and the industry-specific accounting practices. If I talk about the history of the GAP, traditionally accounting standards was established by AICPA, that is American Institute of Certified Public Accountant. They formed a committee on accounting procedure in 1939, which on 1951 was substituted by Accounting Principles Board, and it was again replaced by FASB, that is Financial Accounting Standards Board. Currently, FASB is working under the supervision of Financial Accounting Foundation, whose main aim is to recommend and provide input on the accounting standards. Basically, accounting principles and accounting standards experience से बनते हैं, and the experience which feels like it's useful and should be applied, so they become the standards, and FASB accept it as a standard and apply to all the companies. What is IFRS then? In International Financial Reporting Standards are universal financial reporting standards. GAP is something like related to the business entities and non-business entities. IFRS is for all type of entities. IFRS is accepted internationally. Basically, IFRS allow international business to understand each other so that they can work together. In India, everyone is assumed to follow GAP, but anyone who is following IFRS, they need to provide the disclosure. But if there is no disclosure, it will be assumed that they are following GAP. Now let's understand the meaning of accounting standards. Accounting standards basically lay down the principles for recognition, measurement, presentation, and disclosure of the information in the financial statement so that the financial statements bring quality to the investors. Accounting standards have a significant role in the sound financial reporting system in the country, and these needs to be implemented in letter and spirit by every company in the country. In India, ICAI, that is Institute of Chartered Accountant of India, is apex body who will formulate the accounting standards. On 21st April 1977, ICAI has set up the board, which is Accounting Standard Board, to harmonize the accounting policies. ICAI is the associate member of the International Accounting Standard Committee and a member of International Federation of Accountants. And therefore, Indian accounting standards are named and numbered in the same way as IFRS. And the NFRA, that is National Financial Reporting Authority, also recommended these standards to MCA so that every company in India apply these accounting standards. Now, Indian accounting standards have classified the enterprises on which the accounting standards will be applicable. Now, these enterprises are classified as level 1, level 2, and level 3. Currently, there are 27 accounting standards. So let's learn what are the different types of enterprises one by one. Level 1 enterprises. These are the enterprises whose equity or debt securities are listed in India or outside India, or who are in the process of listing their equity or debt securities.
banks including cooperative banks, financial institutions, enterprises carrying on insurance business, all the commercial, industrial and business reporting enterprises whose turnover audited in the audited financial statements exceeds 50 crores or who have a borrowings in excess of rupees 10 crores और इन सबकी holding or subsidiary will be the enterprises level 1. Level 2 enterprises are those whose turnover is greater than 40 lakhs but less than 50 crores and who has borrowings greater than 1 crores but less than 10 crores. Any other enterprises who are not covered in level 1 in level 2 are enterprises covered in the level 3. Now, according to these enterprises, accounting standards has been classified. Like, accounting standards applicability has been classified as level 1, level 2 and level 3. If I talk about AS1, it is applicable to all the levels. AS2, all the levels. AS3, that is cash flow statement, it is applicable to only level 1. AS4 is applicable to all. AS5 is applicable to all. AS7 is applicable to all. AS9, 10, 11, 12 is applicable to all. AS13, AS14, AS15, AS16 is applicable to all, but AS17 and 18 is applicable to only level 1. AS19 is applicable to level 1 and to level 2 and 3 it is partial applicable. Partial applicable means that there are some provisions which are not applicable to 2 and 3 and rest all the provisions are applicable. In AS20 as well, level 2 and level 3 mein it is partially applicable and level 1 mein it is completely applicable. All the provisions are applicable. AS21 is applicable to only level 1. AS22 is applicable to 3 of the levels. AS23 to only 1 and AS24 is to only 1. AS26 is applicable to all, 27 to only 1, 28 to all, 29 again partial to 2 and 3 and all the provisions will be applicable to level 1. So these are the accounting standards which are applicable as per the level 1, level 2 and level 3. Out of these accounting standards we will be learning only few of them which are important as per your examination. Rest. So let's start with the accounting standards which you need to learn thoroughly. First accounting standard is AS1, that is disclosure of accounting policies. This standard deals with that every company needs to disclose all the accounting policies followed by them while they prepare the financial statements. मतलब जब भी कोई कंपनी अपनी financial statements बनाते हैं तो जो भी उन्होंने accounting policies follow करी हुई हैं तो वो सारी disclose करेंगे. And that disclosure should be the part of the financial statement so that investors or the potential investors should have the proper understanding of the financial statements. इसी के साथ अगर वो कुछ चेंज कर रहे हैं डिस्क्लोजर में, दैट मीन्स अगर कुछ लास्ट ईयर उन्होंने कोई और पॉलिसी अडॉप्ट करी थी और इस साल उन्होंने पॉलिसी को चेंज करा है, तो अगर उसका कुछ मटेरियल इफेक्ट पड़ा है तो दे ऑल्सो हैव टू disclose it in the financial statement that yes, that it has a material impact on the financial statement and they have to disclose in the financial statements. But if they are disclosing every accounting policy or the changes as necessary in the financial statement, this doesn't mean कि अगर उन्होंने कुछ accounting policy गलत adopt कर भी ली है तो वो उन्हें remedy provide करेगा. Disclosure is a standard, but if you are adopting something inappropriate and you are disclosing it, तो इसका मतलब ये नहीं है that you are okay, you are right. You will be wrong if you have adopted any inappropriate policies. Another accounting standard is AS2, which is valuation of inventories. Now this standard deals with कि जो हम financial statements में अपनी inventories को record करते हैं वो इन्वेंट्रीज किस वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए ये स्टैंडर्ड डिटरमिन करता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इन्वेंट्रीज, व्हाट आर इन्वेंट्रीज? इन्वेंट्रीज आर फर्स्ट गुड्स, वो गुड्स जो हमने फर्दर सेल के लिए अपनी शॉप पे या अपनी फैक्ट्री में रखे हुए हैं. और आई विल टॉक अबाउट वर्क इन प्रोग्रेस. Work in progress are those which are in the process of the production.
मतलब ना तो हम उसे रॉ मटेरियल कह सकते हैं बिकॉज वो बिल्कुल रॉ नहीं है, दे आर इन द प्रोसेस, ना ही हम उन्हें गुड्स कह सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट येट completed. Third type of inventory is raw material. Raw material is something जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में ऐड होगा या फिर उस रॉ मटेरियल से हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. बट इन्वेंट्री स्पेयर पार्ट, सर्विस इक्विपमेंट और स्टैंड बाय इक्विपमेंट नहीं है. सो इफ आई टॉक अबाउट इन्वेंट्री, आई विल टॉक अबाउट द रॉ मटेरियल, गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस. रॉ मटेरियल जो अभी बिल्कुल हम प्रोडक्शन प्रोसेस में जाने हैं, goods which are completed, work in progress which are neither raw material or nor goods. Measurement of inventory. If you remember, we have learned the accounting principle of conservatism, that is a principle of prudence. Now this principle says that कि आपको अपने future losses को record करना है, लेकिन जो future profits हैं उनको record नहीं करना. जब भी आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो, यू हैव टू बी वेरी कंजर्वेटिव. तो उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हम इन्वेंट्री को मेजर करते हैं वो कैसे करेंगे? लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. नाउ कॉस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कितने की हमने परचेज करी है, उसका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और सारी कॉस्ट जो कि उसको एक प्रेजेंट कंडीशन में वो गुड्स है, वो सारी कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे. या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मतलब कितना उसका सेलिंग प्राइस हमने अपना एस्टिमेट करा है. नाउ वी विल मेजर लोअर ऑफ द बोथ. व्हाई? बिकॉज लेट्स से इफ यू हैव एन इन्वेंट्री ऑफ रुपीज 10, आपका जो परचेजिंग प्राइस था वो ₹10 था, बट यू कैन सोल्ड इन द मार्केट फॉर ₹15. बट अभी तो वो सेल नहीं हुआ, तो आप 15 में कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? Because future is uncertain, you cannot record at your net realizable value. अगर वो ज़्यादा है तो therefore we have to record inventory lower of cost, मतलब कि जितने की हमें पड़ी है lower, या फिर net realizable value. In short, कितनी उसकी market value है, कितने का आप उसको सेल कर सकते हो मार्केट में. इन दोनों से जो सा अमाउंट लेस होगा वही अमाउंट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड हो जाएगा. Another standard which we will discuss is AS9, that is Standard of Revenue Recognition. Now this standard deals with that how we will recognize our revenue in the statement of profit and loss account. मतलब profit and loss account में हम कैसे revenue recognize करेंगे. Now if I talk about revenue, it is something arising in the course of ordinary activities of the business. From revenue कहाँ से generate हो सकता है? सेल ऑफ गुड्स, सर्विसेज, और अगर कुछ इंटरेस्ट, रॉयल्टीज और डिविडेंड्स हैं, इन तीनों से आपके रेवेन्यूज जनरेट हो सकते हैं. नाउ हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दीज रेवेन्यूज, दिस स्टैंडर्ड विल एक्सप्रेस. हाउ वी विल मेजर द रेवेन्यू? रेवेन्यू इज मेजर्ड अगर कुछ कस्टमर या क्लाइंट से कुछ चार्जेस लिए गए हो क्योंकि हमने उन्हें गुड्स दिए हैं या सर्विसेज लिए हैं, या फिर हमें कुछ रिवॉर्ड मिला हो बिकॉज हमारे रिसोर्सेज किसी और ने यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर लाइक गोइंग विद सम इन्वेस्टमेंट्स, वी विल गेट इंटरेस्ट. इफ वी हैव शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी, वी विल गेट डिविडेंड. अगर हमारे कोई पेटेंट्स या ट्रेडमार्क्स यूज कर रहे हैं, वी विल गेट अ रॉयल्टी. बट अगर एजेंसी रिलेशनशिप है, मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, तो रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ कमीशन होगा जो उसे मिल रहा है, ना कि ग्रॉस इनफ्लो. बिकॉज बाकी सब तो उसको रीएम्बर्स करना है अपने प्रिंसिपल को, तो एजेंट के पास सिर्फ जो उसका कमीशन है वो रह जाता है और वही उसका रेवेन्यू होगा. रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, अगर सेल ऑफ गुड्स है तो हाउ वी विल रिकॉग्नाइज इट्स अ रेवेन्यू इन द केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स. प्रॉपर्टी गुड्स की ट्रांसफर हो जानी चाहिए, जितने भी उसके रिस्क हैं और रिवॉर्ड्स हैं उस गुड्स के साथ एसोसिएटेड, वो सारे बायर को ट्रांसफर हो जाने चाहिए. सेलर का कोई भी कंट्रोल उस गुड्स पे नहीं रहना चाहिए और कोई भी अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए in the amount of the consideration कि चलो आज अमाउंट इतना है, कल चेंज हो गया. There should be no uncertainty. If I am saying I am selling you these goods for ₹5,000 or 10,000, so this means
that this is the 5,000 which is the consideration which I will be getting. But performance के time पे it should not be unreasonable to expect ultimate collection. मतलब it should not be unreasonable कि आपके पास जो ultimate collection है वो नहीं आए. Recognition of revenue when we render the services. Now, if we are rendering the services, it can be of the completed services or the proportionate completion. तो revenue proportionate ही होना चाहिए जितना काम आपने complete किया है. Again, in this as well, there should be no uncertainty which exists regarding the amount of the consideration. Performance के time पे it should not be unreasonable to expect ultimate collection. In the case of interest, royalty or dividend, there should be no uncertainty. अगर इंटरेस्ट है तो वो प्रॉपर टाइम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आपको मिलना चाहिए. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रॉयल्टी, तो जो भी आपके अग्रीमेंट में मेंशन्ड है अक्रूवल बेसिस के अकॉर्डिंग आपने रिकॉर्ड करना है. और जो भी डिविडेंड है, अगर आपके पास राइट है डिविडेंड को लेने का, तभी रेवेन्यू डिविडेंड में रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा. अगर कुछ अनसर्टेनिटीज हैं विद रिस्पेक्ट टू कलेक्शन, तो हम क्या करेंगे? अगर अनसर्टेनिटीज आपके क्लेम रेज करने पे है, तो आप अपना रेवेन्यू पोस्टपोन कर दो और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना रेवेन्यू शो मत करो जब तक अनसर्टेनिटी खत्म नहीं हो जाती. और अगर आपकी कुछ अनसर्टेनिटी लाइक एक रीजनेबली जो क्लेम है वो आपका क्लियर हो जाता है, तो आप सिर्फ उतना ही कलेक्शन आप रिकॉर्ड कर सकते हो. बट अगर आपकी अनसर्टेनिटी आपके सेल के बाद आती है, तो जो आपने रेवेन्यू ऑलरेडी ले लिया उसको तो आप एडजस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उसका सेपरेट प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो. जैसे हम करते हैं बैड डेट्स के केस में. डेटर्स तो अब आपके बन गए, रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर चुके हो, लेकिन अगर सपोज कोई बैड डेट है तो आप उसे क्या करोगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में ट्रीट कर दोगे, बिकॉज अब आप उन्हें सेल कर चुके हो. अब आप पोस्टपोन नहीं कर सकते अपने रेवेन्यू रिकॉग्निशन, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड दैट डेटर्स आर योर रेवेन्यू. बट आप अगर उसका प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रिएट कर दोगे तो वो पोस्टपोन हो जाएगा. Another standard is AS10, which is also known as standard of PPE, that is property, plant and equipment. Now this standard deals with जो property, plant and equipment है उसको हम अपने balance sheet या financial statements में कैसे record करेंगे. Now PPE are the tangible items which are either held for the production, जैसे कि machineries है, ठीक है, या किसी को हमने रेंट पे दिया हुआ है लाइक बिल्डिंग, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हमारे पास है जैसे कि ऑफिस. और दे आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 12 मंथ्स. जो 12 मंथ से ज़्यादा आपकी एसेट्स हैं जिनको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं, वो टैंजिबल एसेट्स किस में ट्रीट होंगी? PPE में, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट. नाउ व्हाट कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट? हम बैलेंस शीट में क्या कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे PPE का? बट हम इसको तभी रिकॉर्ड करेंगे जब इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपकी फर्म से रिलेटेड हो और इसकी कॉस्ट मेजर कर सके प्रॉपर्ली. Now if I talk about the cost of PPE, we have to include all the three costs. फर्स्ट इज परचेज कॉस्ट, मतलब अगर उसके ऊपर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी लगी है, कोई परचेज टैक्स लगा है, तो वो इंक्लूड होगा. अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला या कोई रिबेट मिली है तो उसे हम एक्सक्लूड करेंगे. कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और नेसेसरी कॉस्ट है उसको मतलब उसको स्टार्ट करने के लिए, जैसे हम इंस्टॉलेशन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, वो सारी कॉस्ट भी इंक्लूडेड होगी. मोरओवर कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग द प्रीवियस मशीन, मतलब अगर आपने नई मशीन को कहीं पे इंस्टॉल करना है, अगर आपको वो वाला साइट दोबारा से रीस्टोर करना पड़ेगा तो उसकी कॉस्ट भी आपकी कॉस्ट ऑफ PPE में इंक्लूड हो जाएगी. सो इफ cost will include purchase cost, cost of transportation, everything that are necessary cost and directly attributable to that PPE, and cost of dismantling and restoration. How you will measure it? Now there are two models to measure PPE, the cost model and the revaluation model. Let's discuss these two models one by one.
नाउ फर्स्ट मॉडल इज कॉस्ट मॉडल। जो भी अभी हमने कॉस्ट कैलकुलेट करी है, जिसमें हमने परचेज कॉस्ट ऐड, एनी नेसेसरी कॉस्ट ऐड, जो भी डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट है, उसमें हम कोई भी डेप्रिसिएशन जो हमारा एक्यूमुलेट हुआ है या फिर कोई लॉसेस अगर है, तो दैट विल बी द कॉस्ट विच वी विल शो इन द बैलेंस शीट। नाउ दिस सेज जो भी आपका पीपीई के जितने भी कॉस्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे सेपरेटली डेप्रिसिएट होंगे और आप सेपरेटली डेप्रिसिएट उन्हें दिखाओगे। जो भी डेप्रिसिएबल अमाउंट है वो उसकी यूजफुल लाइफ में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे या फिर WDV मेथड से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। मतलब अगर आपका डेप्रिसिएशन 5% है तो आप एक उसका यूजफुल लाइफ डिटर्मिन कर लोगे, लाइक 10 ईयर्स और 12 ईयर्स। तो उन 10 और 12 ईयर्स में ही आप डेप्रिसिएशन लगाओगे। आप ऐसा नहीं करोगे कि सारा डेप्रिसिएशन आप एक ही साल में लगा लोगे। इट शुड बी ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। और जो भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो किसी भी पीरियड का, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो भी आपकी रेजिडुअल वैल्यू है वो आपकी बैलेंस शीट में शो होगी। जो डेप्रिसिएशन मेथड जो भी अडॉप्ट करा है, दैट कंपनी हैज टू डिस्क्लोज कि कौन सा मेथड अडॉप्ट करा है। अगर कोई चेंज है डेप्रिसिएशन मेथड में कि पहले अगर SLM था अब WDV है, तो वो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मेथड्स SLM हो सकते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV रिटन डाउन वैल्यू मेथड एंड यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। सो कॉस्ट मॉडल में बैलेंस शीट में हमेशा एंड में वही फिगर रहती है जो आपकी एक्चुअली में है, लाइक कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, जो भी वैल्यू रह जाएगी वो आपकी बैलेंस शीट में शो करेगा। अनदर मॉडल इज रीवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल में हमने कॉस्ट को रिकॉग्नाइज किया था और उसमें डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे, तो जो भी बैलेंस आता है वो हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं एज अ वैल्यू। बट इन द रीवैल्यूएशन मॉडल वी विल टेक द रीवैल्यूड अमाउंट। रीवैल्यूड अमाउंट मतलब द फेयर मार्केट वैल्यू, द वैल्यू इन द मार्केट। इन द कॉस्ट मॉडल जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है सिर्फ हम वही इंक्लूड करते हैं। बट रिवैल्यूएशन मॉडल में सिर्फ एक फ़र्क है कि जो भी रिवाइज्ड वैल्यू होगी हर साल हम उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नाउ हाउ वी विल अकाउंट द रिवैल्यूएशंस। अगर कुछ इंक्रीज हुआ है एसेट्स की वैल्यू में तो हम उसे रिवैल्यूएशन सरप्लस ट्रीट करेंगे और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ क्रेडिट हो जाएगा। और अगर कुछ डिक्रीज हुआ है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। और साथ ही साथ जो भी आपको डेप्रिसिएशन उस पर चार्ज करना है तो बैलेंस शीट पे रीवैल्यूएशन वैल्यू माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनी एक्यूमुलेटेड लॉस, जो बैलेंस रह जाएगा वही बैलेंस शीट में आपका वैल्यू एंड एंटर हो जाएगा। Another accounting standard is AS 13 which deals with accounting for investments. Investments को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उनके क्या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स होंगे। Now what about investments? Investments are the assets जो कि एंटरप्राइज जिसमें इन्वेस्ट करते हैं और इन रिटर्न ऑफ व्हाट दे गेट डिविडेंड, इंटरेस्ट और रेंटल्स। ठीक है, बट एसेट्स जो उन्होंने स्टॉक इन ट्रेड में रखा हुआ है वो इन्वेस्टमेंट्स आपकी नहीं है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक टर्म है दैट इज अ फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू इज समथिंग जिसमें एक आपके पास एक विलिंग बायर है और एक नॉलेजेबल विलिंग सेलर है एंड दे एक्सचेंज द एसेट। मतलब बेसिकली द मार्केट वैल्यू इज द फेयर वैल्यू ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट्स। Types of investment, there are two types which are current and long term investments. Current investments are those which are readily realizable, मतलब एक साल के अंदर अंदर वो realize हो जाती हैं। Long term investments are those which are other than current assets, मतलब जो कि 1 years के beyond भी assets आपकी कंपनी में रहती हैं। अब करंट इन्वेस्टमेंट्स के कॉस्ट में जो उनकी कैरिंग वैल्यू है वो होगी लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में वो कॉस्ट पे ही कैरी होगा, फेयर वैल्यू पे वो कैरी नहीं होता बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म, तो फेयर वैल्यू उनकी काफी चेंजेस होते हैं। हाउ यू विल कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट? इट विल बी डिपेंड कि उसका मोड ऑफ एक्विजिशन क्या है। अगर आपने एक्चुअल में कैश पेमेंट करी है तो कैश प्राइस है। अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट के बदले शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू करे हैं तो उसकी फेयर वैल्यू। अगर उसके एक्सचेंज में कोई एसेट दी है तो फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। लास्ट पार्ट इज हाउ यू विल रिकॉर्ड व्हेन यू डिस्पोज ऑफ एन एसेट। अगर आप इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज ऑफ करते हो तो आप कैसे रिकॉर्ड करोगे?
जो भी कैरिंग अमाउंट मतलब जो भी अमाउंट जो आपने लिखा हुआ है बैलेंस शीट में और जो भी नेट डिस्पोजल है, अगर उसका डिफरेंस आपका लॉस है तो वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगा। अगर प्रॉफिट है तो वो होगा क्रेडिट। अगर आप कुछ सिर्फ पार्ट एक इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट का आप सेल कर रहे हो तो सिर्फ उस पार्ट का एवरेज आप कैरी करोगे प्रॉफिट और लॉस, और उस पार्ट को आप प्रॉफिट और लॉस में मेंशन करोगे। Now if the investment is reclassified, that means अगर करंट को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म को करंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो how you will recognize the investments. If you are transferring from current to long term, तो कॉस्ट या फेयर वैल्यू में से जोन सा भी लेस होगा ट्रांसफर की डेट पे वो आप रिकॉर्ड कर दोगे बैलेंस शीट में। अगर आप लॉन्ग टर्म टू करंट में जा रहे हो तो जो भी आपका कॉस्ट है या फिर जो कैरिंग अमाउंट है जो आपने बैलेंस शीट में ऑलरेडी लिखा हुआ था, उन दोनों में से जो भी लेस होगा वो आप बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दोगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टमेंट, हाउ यू विल रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट। इन स्टैंडर्ड्स के साथ यू नीड टू लर्न ऑल द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन ब्रीफ विच आर कवर्ड अंडर द गैप। अगर आपको कोई और स्टैंडर्ड की एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, वी विल श्योरली हेल्प यू with another video with that standard. I hope ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। If you like this video and like to watch similar videos, then like and subscribe YouTube channel of Nyay Academy. Thank you. Have a nice day.